8:30 बजे। अभी आप लोग बैठिए, अभी थोड़ा भगवान का कथा होगा तो कथा सुनिए, फिर 8:30 बजे मंदिर खुलेगा। 8:30, 10:30 थोड़ी होता है। ये जो भागवतम क्लास होगा अभी, ये हम बताएंगे तो आप लोग सुनिए बैठ के। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरो वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, क्या बोलिए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय राधा माधव सुंदर, राधा माधव सुंदर, राधे राधे। नीताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताई। होमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमायं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने, नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदाय नगरग्रामोत्तरिणे, नमायं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। सब हाथ उठा के बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टादश अध्याय 28 नंबर श्लोक। अलब्ध तृण भूमि आदि, असंप्राप्त अर्घ्य शून्वित, अवज्ञातम इव आत्मनम मन्यमान चुकपः। अलब्ध तृण भूमि आदि, असंप्राप्त अर्घ्यो शून्वितः, अवज्ञातमेव आत्मानं मन्यमान चुकपः। अलब्ध तृण भूमि आदि, असंप्राप्त अर्घ्यो शून्वितः, अवज्ञातम इव आत्मानं मन्यमान चुकपः।
অনুবাদ। রাজা যখন দেখলেন যে মুনি তাকে তৃণাসন, স্থান, অর্ঘ্য কিছুই প্রদান করলেন না, এমনকি প্রিয় বচনেও সম্ভাষণ করলেন না, তখন তিনি নিজেকে অপমানিত মনে করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। তাৎপর্য: বৈদিক প্রথা অনুসারে গৃহে যদি শত্রু আসে তাহলে তাকেও সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করবার নির্দেশ দেওয়া আছে। তার সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করা হয় যে তাকে বুঝতে দেওয়া হয় না যে তার গৃহে শত্রু এসেছে বা সে তার শত্রুর গৃহে এসেছে। ভীম এবং অর্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ যখন মগধরাজ জরাসন্ধের কাছে গিয়েছিলেন, তখন জরাসন্ধ তার সম্মানিত অতিথিদের রাজকীয় ঐশ্বর্যে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তার অতিথিরূপী শত্রু ভীম জরাসন্ধের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মহা আড়ম্বরে সম্বর্ধনা করা হয়েছিল। রাত্রিবেলা তারা বন্ধু এবং অতিথিদের মতো একত্রে বসতেন, আর দিনের বেলা তাদের জীবন বিপন্ন করে লড়াই করতেন। সেটি হচ্ছে অভ্যর্থনার বিধি। শাস্ত্রবিধি হচ্ছে এই যে একজন অক্ষম দরিদ্র ব্যক্তি, যার অতিথিকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই, তিনিও অতিথিকে অন্তত বসবার জন্য একটি তৃণাসন, পার করবার জন্য জল, মধুর বাক্য নিবেদন করবেন। তার ফলে তার অতিথি সৎকার করতে কোনো অর্থ ব্যয় হবে না। এটি তো কেবল শিষ্টাচারের কথা। মহারাজ পরীক্ষিত যখন শমীক ঋষির দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তখন তিনি সেই ঋষির কাছ থেকে কোনো রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেনি, কেননা তিনি জানতেন যে মহাত্মা এবং ঋষিরা জাগতিক বিচারে ধনী নন। কিন্তু তিনি আশা করেননি যে একটি তৃণাসন, একপাত্র জল এবং কিছু মধুর বাক্য থেকেও বঞ্চিত হবেন। তিনি কোনো সাধারণ অতিথি ছিলেন না এবং তিনি ঋষির শত্রুও ছিলেন না, এবং তাই ঋষির এই অপ্রত্যাশিত আচরণে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত রাজার পক্ষে তখন ঋষির প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল। একজন রাজার পক্ষে এই রকম একটি পরিস্থিতিতে ক্রুব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু যেহেতু রাজা স্বয়ং কোনো মহাত্মা থেকে কম ছিলেন না, তাই তার ক্রুব্ধ হওয়া এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কার্যকর আশ্চর্যজনক ছিল। তাই বুঝতে হবে যে পরমেশ্বর ভগবান ইচ্ছার প্রভাবিত হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত এবং ঋষিও ছিলেন রাজারই মতো একজন মহাত্মা, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যার ফলে রাজা তার আত্মীয় স্বজন এবং রাজকার্যের প্রতি অনাসক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মে সর্বতভাবে শরণাগত হয়ে পড়েন। পরম করুণাময় ভগবান কখনো কখনো তার শুদ্ধ ভক্তকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তার কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে সেই অবস্থা ভক্তদের কাছে নৈরাশ্যজনক বলে মনে হতে পারে। ভক্তদের ভগবান সবসময় রক্ষা করেন এবং নৈরাশ্যে অথবা সাফল্যে সর্ব অবস্থাতেই ভগবান তাদের পরিচালিত করেন। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা নৈরাশ্যজনক অবস্থাকেও ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। হরে কৃষ্ণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर आप लोग तो बंगाली कुछ नहीं समझे, हम जो पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो परीक्षित महाराज का नाम आप लोग सुने ना, तो परीक्षित महाराज ने जब शिकार करने के लिए गए थे जंगल में, उसको बहुत प्यास लगे थे, भूख भी लगे थे, तो कोई भी नहीं था, जंगल में कोई नहीं रहता, तो एक छोटा कुटिया देखा। घूमते घूमते इधर उधर घूमते घूमते एक छोटा कुटिया देखा, तो कुटिया में एक ऋषि जिसका नाम थे शमीक ऋषि, वो बैठकर तपस्या कर रहा था। वहाँ पर बैठ के भगवान का भजन कर रहा था। तो वहाँ पर महाराज परीक्षित ने, जो सारा पृथ्वी वो शासन करते थे, राजा था, पृथ्वी का राजा था वो तब, तो जाके क्या किया, तो उसको पानी मांगा थोड़ा पीने के लिए। बहुत प्यासे थे, भूखे भी थे, तो पानी मांगे, तो क्या किया, और कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ बैठे रहे। तो तब महाराज परीक्षित ने थोड़ा गुस्सा हो गया था, थोड़ा क्रोधित हो गया था, होके उसके शरीर में एक सांप
स्नेक, सर्प क्या किया था, उसका गले में जैसे माला हम लोग पहनते हैं ना, वैसे माला का तरह से एक सांप लगा दिया था। तो उसका जो लड़का था, वो ऋषि का जो लड़का था, तो बहुत गुस्सा हो गया। बाद में ऋषि का लड़का सुना जो उसका पिता का गला में एक राजा ने कोई भी जाके एक सांप लगा दिया, झुला दिया, तो बहुत गुस्सा हो गया। तो गुस्सा होने के बाद वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँचने जब देखा तो क्रोधित होकर पूरा श्राप दे दिया उसको। श्राप देता है ना, श्राप दे दिया। 7 दिन के अंदर तक्षक सांप का दंशन में उसका मौत हो जाएगा, ऐसा पूरा उसको अभिशाप दे दिया था। तो आज जो श्लोक है, तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी, हम लोग का जो फाउंडर आचार्य है इस्कॉन का, तो उन्होंने बता रहा क्या तात्पर्य में, जब वैदिक सिस्टम में क्या होता है, तो वहाँ पर घर में अगर कोई हम लोग का शत्रु भी आएगा, शत्रु होता है ना हम लोग के साथ, जिसका मत का मिल नहीं होता है उसका हम लोग शत्रु बोलते हैं, तब भी जो सनातन धर्म का जो सिस्टम है या वैदिक धर्म का जो सिस्टम है, उसमें कोई शत्रु अगर घर में आएगा तब भी उसको क्या सम्मान करना चाहिए, उसको मर्यादा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको घर में बैठाना चाहिए, अच्छा से बात करना चाहिए, अच्छा से भोजन करना भी चाहिए। समझ में नहीं आना चाहिए और कोई किसी शत्रु का घर में आए हैं और उसका शत्रु है, ये भी उसका शत्रु है, दोनों कैसे आचरण करना चाहिए, मित्र की तरह आचरण करना चाहिए, मित्र की तरह, ये सिस्टम है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसको उदाहरण भी दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है। कैसे, जब भीम, अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण ने मगध अभी जो बिहार का नाम है मगध, और मगध राज जरासंध तब वहाँ पर राज करते थे मगध में, पहले का नाम मगध था द्वापर युग में, अभी तो बिहार नाम हो गया। तो वहाँ वो लोग गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी गए थे, अर्जुन गए थे, भीम गए थे। तो जरासंध बहुत पहले से ही इन सब का, ज़्यादातर के भगवान कृष्ण का वो विरोधी था, बहुत बार उसके ऊपर हमला किया, द्वारका नगरी में बहुत बार ये जरासंध क्या किया था, अटैक किया था, और भगवान के साथ बहुत युद्ध भी उसका हुआ। तब भी जब ये लोग गए तब भी क्या किया, ये जरासंध ने ये तीनों को बहुत सम्मान दिया, बैठने के लिए आसन दिया, भोजन अच्छा भोजन दिया, अच्छा बात भी किया, समझ में नहीं आने दिया वो दोनों का क्या आपस में बहुत झगड़ा है। पर बाद में जब रात में वो लोग बंधु की तरह रहते थे, पर दिन में जब उसका लड़ाई होता था तब पूरा एकदम सत्य, तब कोई मित्रता नहीं, जब जिसका नीति ऐसा था। अभी तो नीति चेंज हो गया ना, सामने सब क्या करते हैं, अच्छा बात करते हैं, हाँ, और पीछे में छोड़ा लेके घूमते हैं ना, और मौका मिलेगा तो घुसा देंगे उसको छोड़ा, ऐसा अभी हो गया, सिस्टम ऐसा हो गया। सामने बहुत मधुर बात बोलते हैं, हाँ अच्छा है, ये वो है, और पीछे में एकदम उसको पूरा ख़त्म करने के लिए पूरा एकदम रेडी रहता है। पर पहले ऐसा नहीं था। तो शास्त्र के अनुसार में जिसका घर में कुछ नहीं, बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है, तब भी उसका घर में कोई अगर जाएगा तब भी विधि है। क्या विधि है, उसका बैठने के लिए थोड़ा बोलना चाहिए। घर तो है, छोटा भी हो जैसे भी हो, घर में बैठने के लिए उसको थोड़ा बोलना चाहिए। फिर उसके बाद पानी देना चाहिए, एक आसन देना चाहिए। ये तो सबके घर में रहता है, छोटा एक आसन भी रहता है और पानी भी रहता है और मधुर वचन भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। ऐसे करने से अतिथि का क्या होता है, सत्कार होता है। ये है शिष्टाचार, ये है कोई अच्छा आदमी का ये व्यवहार है, ये अच्छा कोई आदमी ऐसे व्यवहार करते हैं। तो इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। जैसे मानिए मेरा पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, अर्थ नहीं है, संपद नहीं है, अगर कोई महात्मा आ गया या कोई भी आ गया, राजा भी आ गया, तो उसको मधुर वचन से उसको स्वागत करना चाहिए, बैठने के लिए बोलना चाहिए, पानी देना चाहिए, ऐसे ऐसे करके उसको सत्कार करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने जब गया था तो कुटिया में, तब जानते थे ये तो ऋषि है, इसके पास धन संपत्ति तो नहीं है, है ना। मुनि ऋषि के पास कोई धन संपत्ति, साधु लोगों के पास धन संपत्ति रहता है, और जो धन संपत्ति रहता है तो भगवान का सेवा में उसको व्यवहार इस्तेमाल कर देता है ना। तो तब वो जानते थे उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, पर ऋषि ने मौन था, चुपचाप बैठे थे। तो इसी के वजह से क्या हो गया था, परीक्षित महाराज ने गुस्सा हो गया था। और परीक्षित महाराज भी धार्मिक था। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये भी कोई महात्मा से कम नहीं था।
परीक्षित महाराज भी राजा था, पर राजा के रूप में ऋषि था, राजर्षि जिसको बोलते हैं। राजा भी, और बाहर में राजा था, पर अंदर में उसका जो चेतना, उसका जो मन, उसका जो कार्यकलाप जो था वो ऋषि की तरह था, तो राजर्षि था वो। तो इसीलिए उसको भी सम्मान करना है, इनको चाहिए था। ये सारा पृथ्वी को शासन करते थे, धर्म के आधार पर शासन करते थे। परीक्षित महाराज का जब राजत्व था, अधर्म तब वहाँ नहीं होता था। अभी तो हम लोग का हर जगह में अधर्म है ना, कल ही प्रवेश कर गया। दारू का दुकान खुल रहा है, मांस का दुकान खुल रहा है, खराब काम हो रहा है, आदमी को पूरा ठगा रहा है ना। पूरा हर जगह में कोली का जो प्रकोप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तब वो जब महाराज जब राजत्व करते थे, जब राजा थे, तब ये सब नहीं था। धर्म के आधार पर वो पृथ्वी को शासन करते थे, राज्य को शासन करते थे। उसका राज्य में, उसका साम्राज्य में तब साधु मुनि ऋषि बहुत सेफ था। अभी तो हम लोग सेफ नहीं है। अभी कब हमला हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा हमको पता नहीं चलते। साधु लोग को पीटते हैं, ऐसे भी करते हैं, देखते हैं ना, आप सब लोग जानते ही भी है। तो उसके समय में ऐसा नहीं था। वो अच्छे से भजन करते थे, अच्छे से सब कुछ भगवान का सेवा करने के लिए उसको मौका मिलते थे। अभी तो बहुत क्रिटिकल हो गए सब सिचुएशन। तो वैसे राजा को क्या करना चाहिए, कोई मुनि ऋषि भी होगा तो उसको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए उनको क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, वो सांप उठाकर उसके गला में माला की तरह पहना दिया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये जो गुस्सा हो गया, ये भी गुस्सा होना उसका उचित नहीं था, क्योंकि वो तो महात्मा था। वो क्या था, महात्मा था ना। वैसा गुस्सा होना उसका उचित नहीं था। तो इसीलिए क्यों उचित नहीं था, वो महात्मा था, वो भी ऋषि का तरह उसका चेतना था, तो क्यों गुस्सा होगा। साधु लोग तो गुस्सा नहीं होते। साधु लोग के ऊपर कोई गुस्सा करेगा, हमला करेगा, तब भी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, है ना। तब भी हो गया था। तो ये समझना चाहिए, भगवान का कुछ इच्छा ही था। हम लोग का इच्छा से तो कुछ नहीं होता है ना। हम लोग बहुत कुछ इच्छा प्रकाश कर सकते हैं, पर इच्छा को जो फलदान कौन करेगा, सक्सेस कौन करेगा, ये भगवान करेगा। हम लोग का करने के लिए बहुत कुछ इच्छा करते हैं, हम लोग प्लान भी करते हैं, पर मास्टर प्लान कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। मास्टर प्लान होगा या नहीं होगा उसके हाथ में, उनका हाथ में है सब कुछ। तो इसीलिए उस अवस्था में भक्त कोई विचलित नहीं होता। जैसे परीक्षित महाराज को जब सुना सांप दे दिया, तो चाहते तो वो जाके उस ऋषि का बालक को बहुत कुछ कर सकते थे। उसका हाथ में पावर था ना, वो राजा था ना, पावर था, बहुत कुछ कर सकते थे। वो कुछ नहीं किया। वो सोचा ये क्या है, ये भगवान का वरदान है, क्योंकि एक दिन न एक दिन हम लोग का क्या मरना तो पड़ेगा ही ना, हाँ या नहीं। सारा जिंदगी हम लोग तो जी सकेंगे, एक दिन जा रहा और हम लोग क्या मौत की तरह आगे बढ़ रहे हैं ना। तो उनको बोले थे 7 दिन में उसका मौत हो जाएगा, तो हम लोग सबका ही 7 दिन में ही मौत हो जाएगा। 7 दिन के अंदर हम लोग का भी मौत होगा। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ये 7 दिन ही तो है ना हम लोग का जिंदगी में। तो कोई ना कोई दिन तो हम लोग का मौत आएगा, हाँ या नहीं। इसको छोड़कर और कोई दिन है, दिन तो नहीं है। ये 7 दिन के अंदर, जैसे ऋषि बालक ने बोले थे, तो हम लोग का भी तो 7 दिन के अंदर में ही मौत हो जाएगा ना। इसके छोड़कर तो कोई दिन नहीं है। तो इसीलिए वो निराश नहीं हुए थे। वो क्या किया था, वो सीधा गंगा के तट पर गए। अभी भी वो सब जगह है, गंगा के तट पर गए। वो जाके वहाँ पर बैठ गए, रेडी हो गए। और वहाँ पर सब मुनि ऋषि ब्रह्मर्षि सब लोग आए, सारा ब्रह्मांड से सब लोग आए। और सुखदेव गोस्वामी जी भी वहाँ पर उपस्थित हो गया। उनको 7 दिन तक भगवान का जो कथा, ये भागवतम, उसको सुनाया। और निराश होके वो प्रतिशोध भी नहीं लिया, निराश भी नहीं हुआ। तो मेरा क्या होगा, हम तो गुजर जाएंगे, मेरा तो मौत आ जाएगा, मेरा क्या होगा नहीं होगा, ये सोच के वो टेंशन भी नहीं लिया था। और उन लोग के ऊपर, साधु के ऊपर, ऋषि के ऊपर क्रोधित होकर उनको कोई प्रतिशोध भी नहीं लिया था। तो भक्त का एक गुण क्या होता है, एक क्वालिटी क्या होता है, वो कभी प्रतिशोध के लिए कभी सोचता नहीं। साधु महात्मा जो होता है ना, कभी प्रतिशोध नहीं लेते। जैसे हम लोग का एक महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उसका नाम है हरिदास ठाकुर। तो उनको वो हरिनाम करते थे, तो इसीलिए इसके वजह से जो जवान लोग था उसको बहुत मारते थे।
एक बार बहुत मार रहा था, मार मार के पूरा 22 तो बाजार में, जैसे हम लोग का बाजार होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे करे 22 तो बाजार में उसको इतना मारा, तब भी वो कुछ नहीं बोला। तब भी वो भगवान के पास प्रार्थना किया, ये लोग आप क्षमा कर दीजिए। मारते मारते जो लोग मार रहे थे तो वो लोग पूरा एकदम मतलब उसको शक्ति पूरा खाए हो गया मारते मारते। तब भी हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं बोला। बोला आप अगर नहीं मारेंगे तो हम लोगों को जो भेजा है काजी, वो हम लोग का पूरा गर्दन सिर से अलग कर देगा, तो आप कुछ कीजिए। तो बोला ठीक है, आप लोग हमको नदी में बहा दीजिए। तो भगवान का जो भक्त होता है बहुत सहनशील होता है। तो सहनशील का मतलब ऐसा नहीं उसके पास कोई क्षमता नहीं है, उसके पास पूरा क्षमता रहता है और उसका प्रयोग नहीं करते। क्यों प्रयोग नहीं करते? क्योंकि वो साधु है, उसका अंदर में भगवान बैठा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग सब हर सिचुएशन में भगवान का ही शरणागत रहते हैं। जैसे हम लोग का प्रहलाद महाराज जी भी है, उनको बहुत खराब सिचुएशन आया था। सारे राज्य में उसका सब असुर था, उसका पिता भी उसका विरोधी था। प्रहलाद महाराज का ना हिरण्यकशिपु था, पिता विरोधी था, तब भी वो कुछ नहीं बोला। सारा साम्राज्य में उनका सभी विरोधी था, सिर्फ वो अकेले ही विष्णु भक्त था, कृष्ण भक्त था। तब भी वो उसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत खराब कुछ हुआ, तब भी वो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप सहन सका। और एक दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके सबको संहार किया। और आज भी उनका शिक्षा सारा दुनिया, हम लोग पूरा उसका शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं हम लोग को जिंदगी के लिए। तो वैसे ही बोल रहे थे, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो कोई अवस्था में विचलित नहीं होता है। जो सिचुएशन उसके पास आ जाता है वो भगवान का ब्लेसिंग या आशीर्वाद जान के उसको रहता है। जैसे मानिए जो भी सिचुएशन होगा वो सोचता है ये भगवान का आशीर्वाद है, अच्छे के लिए भगवान ने कुछ किया, इसके लिए इसमें मेरा हित है। जैसे परीक्षित महाराज का हुआ था, उनको देखिए मौत का ऐसा अभिशाप नहीं है, मौत का अभिशाप दे दिया था। तब तो अभिशाप का बहुत पावर था ना, मौत का अभिशाप दे दिया, तब भी वो कुछ विचलित नहीं हुए। ये सोचने वाली बात है। हम लोग का कोई बोलेगा तुम लोग को मौत हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे उसको, अभिशाप भी नहीं। हम लोग আমাদের যদি কেউ বলে মৃত্যুর কথা যদি কেউ বলে আমরা কি ছাড়বো? हम लोग नहीं छोड़ेंगे उसको। तो उनको ऐसे पूरा जल लेके आचमन करके पानी, गंगा का पानी लेके उसका श्राप दे दिया था, तब भी वो कुछ नहीं बोले। वो जानते ठीक ये भगवान का आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद के थ्रू क्या हुआ, हम लोग ये श्रीमद् भागवतम, ये अमल पुराण श्रीमद् भागवतम का क्या हम लोग का जिंदगी में भागवतम आ गया, अमल पुराण आ गया। और जिसको सुन के जिसका कथा सुन के हम लोग क्या हो सकते हैं, ये जड़ जगत से उद्धार हो सकते हैं। ये है भगवान का जैसे करुणा, और भगवान का जो महान महान भक्त है उन लोग का भी करुणा हम लोग के ऊपर है। और इसी की वजह से हम लोग भागवतम का हम लोग की ज़िंदगी में आजमा लिया, ये भागवतम सुनने का मौका मिल गया हम लोगों को। तो साधु लोगों को क्या करना चाहिए, हर सिचुएशन में उनको एकदम धैर्य धारण करना चाहिए, बहुत उद्ग्रीव नहीं होना चाहिए, और भगवान का शरण में रहना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। समवेत गौर